Hello, hi everyone. So in this our first ever stock analysis, FinSmart will be taking a closer look at Asian Paints, which is one of the India's leading brand. And yes, today we'll be talking about its current valuation, key changes in the way it might operate in future because of the upcoming competition and the broader shifts within the paint and coating industry. So, in this video, we'll be aiming to provide you valuable insights where Asian Paints can be headed in next 2-3 years from a valuation perspective. Because all of us know that while it is the bluest of the blue chips stocks, इसका valuation in past few weeks या फिर कुछ महीनों से it has been beaten down. So before we start our video or start the analysis, let me talk about few disclaimers. So first thing is we are not SEBI registered. This video is to present our viewpoint and present an independent analysis from a retail shareholder perspective. And kindly do not make any buy or sell decision basis this video or analysis. So okay, let's get started. Now, एशियन पेंट्स का अगर मैं प्राइस हिस्ट्री देखूं और प्राइस टू अर्निंग हिस्ट्री देखूं वर्सेस पीयर्स, तो स्क्रीनर से मैंने फ्रॉम स्क्रीनर आई हैव टेकन द हिस्टोरिकल प्राइजेस फ्रॉम जैन 2019, क्या उसके प्राइजेस रहे हैं और क्या उसका प्राइस टू अर्निंग रहा है. सो इन जनवरी 2019 stock price was around 1400 with a PE of 60. And within this table we can see कि इस स्टॉक का प्राइस कैसे मूव हुआ है फ्रॉम जैन 19 टिल जैन 24 which was 3400 and it is right now at roughly 2300. So what you would notice is कि इस स्टॉक का बिटवीन जैन 21 और जैन 22 इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पीई एक्सपेंशन हुआ था. सो अगर देखते हैं तो विद इन द सेम पीरियड स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था. सो इट वेंट अप बाई 98%. 98% इज लाइक 2770 गया ये 1400 से और जैन 22 में गया 3600. बट वी कैन सी दैट good part of this increase in valuation, increase in the stock price, can be attributed to PE expansion because इसका PE भी 60-65 से it went to 120 or 103, which is quite a high PE. Then with time, the P start coming to a reasonable level, which was 63, and so did the stock price. It took a hit from 3600, यहाँ से वो 2900 गया. और in fact in Jan 24, PE was on the lesser side, but stock price इनका काफ़ी हाई था because they had an exceptional quarter. पर अगर हम अभी देखते हैं आज की तारीख में तो स्टॉक प्राइस इज ऑलमोस्ट एट कोविड लेवल और प्री कोविड लेवल 2300 के प्राइस पर है. एंड पीई इज ऑल्सो ऑन द लेसर साइड. सो वी कैन सी दैट स्टॉक प्राइस इज स्टिल ऑन द प्राइस. स्टॉक में प्राइस चेंज हुआ है लेकिन पीई बहुत ज़्यादा इसका कम हो गया है. बट वन थिंग टू नोटिस हियर इज जब हम दिसंबर 24 का पीई देखते हैं 46 का, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अभी वाले पी जो पी नंबर जो इसका है इसमें 4 क्वार्टर का प्रॉफिट नंबर आया हुआ है विच इज दिसंबर 23, मार्च 24, जून 24 और सितंबर 24. आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर 24 इनका काफ़ी वीक गया था और इनके कॉन कॉल में इन्होंने बोला है कि दिवाली बिजनेस वाज wasn't as per their expectation. इतना अच्छा नहीं गया. वीक कंज्यूमर डिमांड. आई विल शो यू दोज स्निपेट्स एज वेल कि व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द कॉन कॉल. But there are chances that their December 24 numbers might not be that great. और जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है 1475 का, ये कुछ कम नंबर होके मान लो 700-800 करोड़ भी आता है. लेट्स से दे did slightly better in the next quarter because of Diwali or because of uptick in demand. बट तो भी इनका जो नेट पीई निकलेगा उस पीई में से ये वाला प्रॉफिट हट जाएगा और कोई नया प्रॉफिट ऐड होगा. लेट्स से दैट इज अ फिगर ऑफ इट शुड बी अ फिगर रफली इन ट्यून ऑफ 800 से 900 करोड़ का. सो एज एंड व्हेन दैट विल हैपन, देयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो
will automatically go up. So one thing I want to point out here is कि even as of now, don't buy this stock or buy any stock per se just because उसका PE कम दिख रहा है, because this PE might be discounting कि इनका फ्यूचर अर्निंग्स कम के साइड आ सकता है। तो हो सकता है जब वाला अर्निंग कम अगर इनका आता है तो विद ऑन द सेम स्टॉक प्राइस देयर पीई माइट जंप फ्रॉम 46 टू लेट्स से 50 और 52। सो ये तो हो गई अभी तक की हिस्टोरिकल प्राइस की बात। और मैं अगर सेम चीज़ देखूं इनके पीयर्स में, विच इज़ बर्जर हो गया, नेरोलैक हो गया, तो इनका भी प्राइस टू अर्निंग मोटा मोटा सेम डायरेक्शन में सेम तरीके से चल रहा है जैसे एशियन पेंट्स का चल रहा है। एज ऑफ टुडे इट इज़ ऑन दी लोअर साइड 45 और 35। और इनका 5 ईयर मीडियन देखूं तो बर्जर पेंट्स कमांड्स सिमिलर प्रीमियम और हाई पी, जस्ट बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स हैं बर्जर पेंट्स के और एशियन पेंट्स के, they are relatively superior। इनका ROC इज हाई, ROA इनका बेटर है, सिमिलरली इनका ROE काफ़ी अच्छा है। एक्जो नोबेल भी अगर इसमें देखते हैं तो एक्जो नोबेल इज अगेन इज इन सिमिलरली, इसका ROC और ROE numbers are quite good, but again there can be other reasons why the industry is not giving them the same valuation, while the stock market is not giving it the same valuation because इसका PE is on the lower side। अगर हम इसका आगे जाके बात करते हैं, हमने इसका हिस्टोरिकल एक वैल्यूएशन देखा, हम देखते हैं कि इन्होंने एशियन पेंट्स ने अपनी कॉन कॉल में क्या बोला। सो एज पर दे सो आई कैन शेयर द लिंक, आई शेयर द लिंक ऑफ द कॉन कॉल विद यू। आई थिंक इट इज प्रोवाइडेड इन स्क्रीनर ओनली, बट आई हैव इंक्लूडेड सर्टेन स्निपेट्स हियर कि इन्होंने क्या बोला है। आई थिंक विद द अपकमिंग कंपटीशन one thing that they have done is they have done some price reductions जिससे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम होगा। दूसरी चीज, they have number of times in their con call they mentioned कि we are facing intense competitor activity, जहाँ पर डिस्काउंट्स भी हाई थे। और they are talking about weak consumer sentiment which is probably echoed by many other players who are in the consumer segment के consumer के साइड से डिमांड कम आ रही है। So they have done relatively better in rural areas, but rural areas में I would say अभी बिरला ओपस ने अपना expansion, they are acquiring retailers, so maybe they would have also started from the urban centers and going forward they might start tapping into rural areas as well। So while as of now rural centers में इन्होंने अच्छा किया है, but आगे जाके कैसा रहता है it is yet to be seen। So what our takeaway from this is that with the upcoming competition, and Birla Opus is going to be big because it is backed by very strong players with deep pockets. So उनका marketing वगैरह भी काफी aggressive है। You would have all seen advertisements during the recent India versus Australia matches। काफी promotion आ रहा है and they are specifically targeting के पुरानी सोच छोड़ो, नया कुछ पेंट यूज करो। I think something on those lines, and they are also convincing retailers to switch to Birla Opus, and they're just marketing as a superior product with better pricing. That may or may not be true. Again, I haven't used, but what our takeaway is that going forward, we should expect lower margins from Asian Paints and probably from other players as well, owing to the powerful entrant। एंड दैट्स वाई अगर जैसे जैसे अगर नया मार्केट प्लेयर आएगा दे ईट सम ऑफ द शेयर, मार्केट शेयर ऑफ एशियन पेंट्स एंड अदर प्लेयर्स, तो चांसेस है कि इनका ग्रोथ कम हो, चांसेस है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो। तो देयर आर गुड चांसेस कि इनका पीई कंपैरिजन भी हो सकता है। सो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि गुड पार्ट ऑफ स्टॉक प्राइस जहाँ अप्रिसिएशन होता है इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पीई एक्सपेंशन, बट अगर पीई कंप्रेशन होता है तो देयर आर चांसेस के स्टॉक प्राइस में टेक अ हिट। नो, सो इसमें इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स का जो सेल्स नंबर है वो कैसा रहा है। तो बिरला ओपस का जो एंट्री था मार्केट में डेट वाज रफली इन February 24। तो मैंने मार्च टू सितंबर 24 का डेटा उठाया है और मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसे लास्ट ईयर सेम पीरियड से, बिकॉज प्रायर टू दैट बिरला ओपस का इतना इफेक्ट नहीं आया होगा। सो व्हाट वी कैन सी हियर डेफिनेटली इज कि एशियन पेंट्स का जो सेल था इट वेंट डाउन बाय 3%। पिछले साल इनका 17,600 था, इस साल 17,000 रहा। बट द
पॉइंट वेयर दे हैव टेकन अ मैसिव हिट इज इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो इनका लास्ट ईयर इतने बेस पर 17,600 के बेस पर दे अर्न रफली 3850 एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो इस साल घट के से 2900 रह गया. सो दे हैव टेकन ए मासिव हिट इन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच मीन्स कि इनका मार्जिन सब्सटेंशियली कम हुआ है एंड हेंस द ईपीएस. एंड द पिक्चर इज मोर और लेस ट्रू फिर फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल. सेम चीज बर्जर के संग हुई थी, सेम चीज नेरोलैक के संग हुई थी. तो अगर यही ट्रेंड हम देखते हैं कंटिन्यू रहता है, और आई थिंक बिरला ओपस ने दे हैव मेंशन्ड इन देयर ग्रासिम का प्रेजेंटेशन में, एंड इवन यू विल फाइंड न्यूज आर्टिकल्स कि दे आर टारगेटिंग revenue of roughly 10,000 crore going forward. Let's understand what is happening in the industry. Currently, the industry size is 62,000 crore. Assuming कि वो 12% से बढ़ती है, तो उसका साइज अगले 3 साल में would be roughly 87,000 crore. Now, Birla Opus has mentioned in Grasim का कॉन कॉल, as I mentioned, कि 10% उनको शेयर करना है in 3 years. So Asian Paint being a big player is likely to lose little bit higher share, तो उनका शेयर 55% से मोटा मोटा 50% तक जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू इन द ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री. तो एशियन पेंट का एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू रहेगा ऑन ए बेस ऑफ 87,000 करोड़, और 50% का मार्केट शेयर है इनका, तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वुड बी रफली 43,000 करोड़. लेकिन ध्यान रहे कि इनके मार्जिन अभी ड्रॉप हो रहे हैं. करेंटली इनका जो नेट मार्जिन है, अभी जो ऊपर वाले स्लाइड में हमने देखे थे, दिस दिस वाज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन 17 और 22%. बट इनका नेट मार्जिन, नेट ऑफ अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, इज करेंटली एट रफली 13%. अगर मैं पिछले 5 साल का एवरेज देखता हूँ, तो सपोज ये 13 साल से घट के 11% रह जाता है, तो ऑन ए बेस ऑफ 43,000 करोड़ अगर ये 11% का नेट मार्जिन रहता है, तो इनका जो प्रॉफिट रहेगा, एनुअल प्रॉफिट रहेगा, इट वुड बी रफली 4730 करोड़. पर इसमें एक चीज और होगी. हमने देखा पीई कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर एशियन पेंट या फिर कोई भी ब्रांड अगर बढ़ते हुए मार्केट में भी अगर दे आर लूजिंग मार्केट शेयर एंड देयर मार्जिन्स आर ड्रॉपिंग ड्यू टू एनी रीजन, तो चांसेस आर कि स्टॉक मार्केट या पूरा उनको वो पीई या प्राइस टू अर्निंग नहीं देगा जो अभी तक वो कमांड करते थे. तो पॉसिबल है जो उनका पीई रहेगा एशियन पेंट्स का, इट माइट ड्रॉप टू roughly 60 from an average of let's say 70 or 75, which is the historic figure. तो एज्यूमिंग उनका पी 60 का रहता है विद ए प्रॉफिट ऑफ 4730 करोड़, तो एंड दिस इज अ गुड सिनेरियो फॉर एशियन पेंट. इट माइट स्टिल बी अ गुड सिनेरियो. मतलब एक्चुअल पिक्चर में वेरी हो सकता है, इंडस्ट्री 12% से ग्रो नहीं करे, हो सकता है उनका शेयर और कम हो जाए, या फिर हो सकता है उनका मार्जिन इतना अच्छा नहीं रहे. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले, बट दिस इज द प्रोबेबल सिनेरियो. उसके हिसाब से अगर 60 का पी है और 4730 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो मार्केट कैप ऑफ एशियन पेंट्स वुड बी रफली 60 इंटू 4730 करोड़, विच इज 2080 2,83,000 करोड़. तो मोटा मोटा उनका जो मार्केट कैप रहेगा वो इतना रहेगा. करेंट आउटस्टैंडिंग शेयर आर रफली 96 मिलियन. तो अगर मैं ये वाले मार्केट कैप पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसे 95.8 करोड़ के फिगर से, तो इनका स्टॉक प्राइस जो आता है दैट विल ट्रांसलेट इनटू प्राइस ऑफ रफली 2960. अगर मैं 2960 को अभी के रेट से देखूं विच इज 2300, तो इट इज रफली ए कैगर ऑफ 9%. कि 3 साल में आपको मोटा मोटा इसका जो ग्रोथ दिख सकता है वो ऑन एनुअलाइज बेसिस it would be roughly around 9%. Not would be, it can be. मतलब, again, no one can predict because there are a lot of assumptions. But whatever is presented here is based on the likely scenario. कि as per our understanding, as per our analysis, this is probably what may happen in the long term. Short run में तो इनका अभी again एशियन पेंट्स फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव अंडरसोल्ड टेरिटरी में है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जंप बैक आए, बट आई विल बी definitely watching their results in the next few quarters. So this was, yes, this was the likely scenario, but there can be other possible outcomes as well. So we would definitely want to understand from you, okay, which possible outcome do you think is
गोइंग टू प्ले आउट। हो सकता है इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करे, रेदर देन 12% इट ग्रोज बाय 15 और 16%, और एशियन पेंट्स मेंटेन देयर सुप्रीमेसी, जहाँ पर इनका पीई इंटैक्ट है, इनके मार्जिन इंटैक्ट है। या फिर हो सकता है इंडस्ट्री स्टिल ग्रोज फास्ट बाई 15%, लेकिन एशियन पेंट थोड़ा बहुत डेंट लेगा अपने बिजनेस को, मे बी दे लूज देयर मार्केट शेयर बाय 1-2%, दे लूज देयर margins by some basis points, but nothing major. And there can be a worse scenario as well as कि इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही, मान लो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बस 5-6% से रेदर देन 12%, और एशियन पेंट्स का जो शेयर है इट ड्रॉप्स फ्रॉम 55 to let's say 48 या 47, or maybe Birla grows faster than what they are expecting, for faster than what they are claiming. मतलब again there are a lot of factors at play, so we would definitely want to know from you that कि क्या सिनेरियो आपको लगता है कि प्ले आउट होगा। सो जस्ट क्लोजिंग आउट, थैंक यू।